بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج سلیوٹ میں دوبارہ پیش کرتا ہوں ججز کو، جنہوں نے آئین قانون کی بحالی اور اپنے حلف کی پاسداری اور حلف کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ انہیں نامعلوم دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ان کے رشتہ داران کو اٹھا بھی رہے ہیں، اغوا بھی کر رہے ہیں اور ٹارچر بھی کر رہے ہیں، جو یہ 1947 سے کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے قوم کے سامنے ان کو ننگا کر دیا ہے، اور ایسا ننگا کیا ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو لباس نہیں پہنا سکتے۔ یہ قوم کے سامنے بالکل عیاں ہو گئے ہیں کہ جو انہوں نے سابقہ 75 سال سے میری قوم میرے ملک کے ساتھ کر رہے تھے، اب یہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ اب انہوں نے جو حربہ استعمال کیا ہے کہ جن ججز نے لیٹر لکھے تھے، جن ججز نے اپنے ضمیر کی آواز اٹھائی تھی، ان کو انہوں نے لیٹر بھیجے ہیں جس میں انتھراکس یوز کیا گیا ہے، جو ایک انتہائی سنگین قسم کا ایک کیمیکل ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رہی، اب ان ججز کو جو لیٹر لکھے گئے تھے، جس میں سب سے آگے ریشما تھی۔ ریشما کون تھی؟ میرا خیال ہے یہ رانی جنرل کی کچھ لگتی ہوگی، اور اس کے بعد گلشاد نامی جو کوئی بی بی ہے، اس کا حوالہ دیا گیا کہ اس نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ پھر موحد، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ لیٹر اس نے لکھا ہے۔ اصل میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ لیٹر کس نے لکھا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لیٹر نامعلوم نے لکھا ہے، کیونکہ کیس بھی نامعلوم کا ہے، دنگے بھی نامعلوم ہوئے ہیں، اس لیے ضرورت بھی ان کو پڑی ہے کہ وہ ان ججز کو تھڑ دے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات یہاں ہی نہیں رکتی، انہوں نے عمران خان کو بھی بڑی دھمکیاں لکھ کے بھیجی، انہوں نے عمران خان کو بھی جیل میں بڑے دعوے کیے کہ آپ کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، آپ پہ کوئی دہشت گردی کا حملہ جیل میں ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، عمران خان کی بیوی کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اس کو بھی زہر دیا ہے۔ یہ یہاں ہے بات، یہ کسی نے نہیں، نامعلوم نے دیے ہیں۔ اب قوم ان کو معلوم کر لے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں انتھراکس کا کیس جہاں پہ گیا ہے، کس جگہ سے یہ لیٹر گئے ہیں، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہونی، کیونکہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی۔ جو لوگ 9 مئی کو جو سرکاری گاڑیوں سے اتر کے پبلک میں بھاگ جا رہے تھے، وہ سامنے نہیں آئے، ان کو آنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے ساتھ محسن نقوی ایک بغیر قسم کا شخص تھا، اس لیے اس کو نہیں آنے دیے۔ ککڑ ان کے ساتھ، انوار الحق جو ہمارا پی ایم بنا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، جو ڈاکٹر عثمان جو ہمارا آئی جی پنجاب پولیس ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس لیے 9 مئی کے لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ 9 مئی میں انہوں نے بیگنا لوگوں کو، بیگنا عورتوں کو 8 مہینے سے پابندِ سلاسل کیا ہوا ہے۔ جس کی ضمانت ہوتی ہے لاہور کیس سے، اسے سرگودا بھیج دیتے ہیں، جس کی سرگودا کیس سے اسے اسلام آباد بھیج دیتے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ 75 سال سے ڈرامے گیری کر رہے ہیں، لیکن اب قوم ان کو ڈرامہ نہیں کرنے دے گی۔ قوم جان چکی ہے کہ ہمارے ساتھ جو 75 سال سے کیا جا رہا ہے، یہی نامعلوم کہتے تھے، یہی سیاسی بونے کہتے تھے کہ عمران خان نشئی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ کریکٹر لیس ہے۔ لیکن میرے قائد نے ان کو جیل میں جا کے بتا دیا کہ نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ نشہ کرتا ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بری عادات میں داخل کیا ہوا ہے، بلکہ وہ بچا ہوا ہے ہر معاملے میں، بلکہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری جو موحد بی بی ہے، جو گلشاد بی بی ہے، یہ ساری بیبیاں ننگی ہو گئی ہیں، اور ان کا تعلق کن نامعلوم سے ہے یہ قوم جان چکی ہے۔ اور ان کو سی سی ٹی فوٹیج ان لوگوں کی نہیں ملنی، موحد بی بی کی نہیں ملنی، گلشاد بی بی کی فوٹیج نہیں ملنی، جو اس نے یہ لوگوں انتھراکس ججز کو جو لیٹر میں ڈال کے بھیجا ہے۔ سب سے بڑی بات،
कि जिन लोगों ने 9 मई का वकूआ तहरीर किया और उस पर अमल दरामद कराया, मोहसिन नकवी, वो आजकल एक मजबूत वजीर बना हुआ है। वो इतना मजबूत है कि उसने शोबाज, जो ड्रामेबाज हमारा प्राइम मिनिस्टर डमी है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। जो हमारा 10% असफ जरदारी है, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने वो खड़ा हो सके। जैसे वो कहता है वैसे हुकूमत को करना पड़ रहा है, जैसे काकर कहेगा वैसे होगा, जैसे फैसल वाडा कहेगा वैसे होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल्स के चहेते हैं। उनका पॉलिटिकली किसी चीज से कोई तलक नहीं। ये बड़ा मरियम नानी पुकार पुकार कर कहती थी कि हकीम सनाउल्लाह जो दवाई देता है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो नानी सुन लो, अब हकीम ही कह रहा है कि इमरान खान के केस जैली फर्जी हैं। इमरान खान को जो जमानतें मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि हकीम की दवाई असर करना छोड़ गई है। अब मरियम नानी, तुम मेरा मशवरा तुमको कि तुम ये हकीम बदल कर दुबई वाला हकीम रख लो। उसके जो दवाई है वो बड़ा असर करती है। और देखें मेरी कौम के साथ किया क्या हो रहा है कि कौम के बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में किताबें देनी थी, उसके लिए 2 अरब 3 अरब हमारे अकाउंट में नहीं है, हमारे खजाने में नहीं है। लेकिन बादशाह सलामत आसफ जरदारी ने एक नया सदारती हाउस वो सिंध में खोलना शुरू कर दिया है। देखें, हमारी कौम के पास पैसे नहीं खाना खाने के लिए, मेरी कौम के पास मेडिकेशन के लिए पैसे नहीं, तालीम और तरबियत के लिए कुछ नहीं। लेकिन जो बादशाह सलामत है, जिनको न्यूट्रल्स ने यहां पे बैठाया हुआ है, उन्होंने नया सिंध में एक सदारती हाउस बनाना शुरू कर दिया है और मेरी कौम के पैसे लग रहे हैं। नानी, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसका आलम देखें। उसने वो गाड़ी जो तोशाखाना से ली थी, उसकी रिपेयरिंग, उसकी पोशिश, उसके टायरों के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए सरकारी खजाने से ले ली है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि न्यूट्रल साथ है। नानी ने अपना नया हेलीकॉप्टर का ऑर्डर पुटअप कर दिया है। एक नया हेलीकॉप्टर जो जापानी मॉडल का हो, उसकी डिमांड आ गई है, क्योंकि नानी एक बादशाही सल्तनत की बादशाह है जिसका हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी गरीब अवाम के लिए ना किसी के पास पैसे हैं कि वो किताबें ले सके, मेरी गरीब अवाम के लिए ना पैसे हैं कि उनकी दवाइयां खरीद सके, मेरी गरीब अवाम के लिए ना कोई पैसा है कि उनकी बीमारियों का ख्याल किया जाए, क्योंकि न्यूट्रल्स उनके साथ हैं। और न्यूट्रल्स भी इंशाल्लाह, ये आप भी सुन लें, जो आपने किया है वो इंशाल्लाह भुगतेंगे। ये कौम अब एक नया मॉडल तैयार करके बैठी हुई है, आप सुन ले गौर से। एक तुर्की वालों ने मॉडल दिया था, एक श्रीलंका वालों ने मॉडल दिया था, लेकिन अब इंशाल्लाह जो मेरी कौम एक नया मॉडल तैयार करने जा रही है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने मुल्क का बड़ा गर्क करके रख दिया है। आप मुहाफिज हैं उन चोरों, लटेरों, गद्दारों के, जिनके सरे महल में महल बने हुए हैं, जिनके फील्ड में अपने लगा घर बने हुए हैं। आप मुहाफिज हैं उन जजीरों के जो उनके ऑस्ट्रेलिया में जजीरे पड़े हुए हैं, और आप मुहाफिज हैं उन लोगों के जो डॉलर्स में हमारे मुल्क से बाहर तरह अपनी पेंशनें वसूल कर रहे हैं। इसलिए आपने ये सारा गंदा खेल शुरू किया हुआ है। और जस्टिस काजी फायजी साहब, तुम भी सुन लो, तुम बड़े बासूल बन के बैठे हुए थे। तुम्हारी बासूलियत का तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुम जरदारी की दाएं साइड पे बैठ के और पार्लियामेंट में जाके उसकी तकरीरें सुन रहे थे। आप शहबाज शरीफ जो 1100 अरब का डिफॉल्टर है पाकिस्तान की आवाम का, जब आप उसकी तकरीर कान लगा के पीडीएम की सुन रहे थे, कौम को तब भी आप नंगे हो गए थे। और जो रहती कसर थी, जो आपने कभी मीडिया नहीं देखा, कभी आपने टीवी नहीं देखा, लेकिन जब आपकी बीवी के बारे में कोई सोशल मीडिया पे बात चलती है तो तब आपको नजर आ जाती है। आपकी असूली जो मौकफ है वो सामने आ गया है कि कितने दिन हुए हैं, 85 दिन गुजर गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जरूरत है और सीनियर जजेस जो सिंध हाई कोर्ट के हमारे चीफ हैं, आपको पता है वो सीनियरिटी में फॉल कर रहे हैं, लेकिन आप उसको
सुप्रीम कोर्ट में तैनाती में नहीं लेके आ रहे। आपको पता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम साहब, वो सीनियर तरीन जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, लेकिन आप उनको वहां पे तलब नहीं कर रहे, उसका नाम समरी में नहीं डाल रहे। आपको पता है कि अमर फरूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी सीनियरिटी में फॉल करते हैं, उनको भी आप हाई कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में तलब नहीं कर रहे, नाम उसमें नहीं दे रहे। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर अहमद भट्टी, उसका नाम भी आप सीनियरिटी में नहीं डाल रहे, क्योंकि आपको खतरा है कि अगर सीनियर जजेस मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए तो आपकी भी टांकें कांप जाएंगी। हकीकत यही है। आपका जो सबसे बड़ा जो असूली मौकफ दफन हुआ, जिस वक्त 6 जजेस के लेटर का आपने मजाक उड़ाते हुए, एक शहबाज शरीफ जो डमी वजीर आजम है, जो हमारा एक क्राइम मिनिस्टर है पूरे मुल्क का, जिसने हमारे मुल्क को लूटा है, जिसके बेटे के अकाउंट में अरबों रुपए गए, लेकिन यह नहीं पता चल सका कि किसने उसके बेटे के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। आपने सारा जो न्यूट्रल्स का रिजल्ट था उसकी झोली में डाल दिया और कहा कि आप देखिए इन जजेस को क्या तकलीफ हुई है। उसी दिन आपकी नीयत सामने आ गई थी, उसी दिन आपकी नीयत सामने आ गई थी जिस दिन आपने तसद्दुक जलानी साहब का चीफ जस्टिस का नाम कमीशन में पुट अप करवाया था कि यह देखेगा कि जजेस को किसने धमकियां दी हैं। आप नंगे हो गए हैं चीफ जस्टिस साहब। अब आप कौम को क्या बताएंगे? आपके पास कुछ बताने को रहा ही नहीं है। अब जो समात चल रही है, जो नोटिस लेने के बाद समात चल रही है, उसके हालात वाकयात आपकी जो तेवर हैं वो भी कौम को नजर आ रहे हैं। लेकिन सुन लो, आपका जो ख्वाब है वो चकनाचूर होगा, जैसे लंदन प्लान चकनाचूर हुआ है। आपका वो ख्वाब कि एक्सटेंशन मिलेगी, 2/3 की अक्सरियत पीडीएम 2 को मिलेगी, वो इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आप बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। 2/3 की एक्सटेंशन जो न्यूट्रल्स भी लेके बांटे हुए हैं कि एक्सटेंशन मिलेगी, वो 2/3 की अक्सरियत इंशाल्लाह आपको अवाम नहीं लेने देंगे। जो मखसूस नशिस्तें हैं केपी के, वो भी आप जीतना चाहते हैं, लेकिन कौम इंशाल्लाह आपको नहीं जीतने देगी। इलेक्शन कमीशन जो एक बिका हुआ शख्स है, जो जिसने विक्टिमाइज किया है पीटीआई को हर लिहाज से, वो इस सोच में पड़ा हुआ है कि किसी तरह मखसूस नशिस्तें इनको मिले और पीटीआई के जीते हुए लोगों को बार बार दोबारा हरा रहे हैं ताकि 2/3 मेजॉरिटी आ सके। लेकिन इंशाल्लाह आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी। ये आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि कौम जाग चुकी है, जिसके बारे में हकीम सनाउल्लाह ने बता दिया है कौम को। जो लंदन प्लान नाकाम हुआ है, इसके साथ 9 मई का प्लान भी नाकाम होगा, इसके साथ साइफर का प्लान भी नाकाम होगा, इसके साथ जो इद्दत केस बनाया था वो भी नाकाम हुआ है। आपने जितने केसेस बनाए हैं, मजीद जितने बनाएंगे इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे, क्योंकि मेरा कायद असूल पे खड़ा है। वैया का नाम दो वैया का नस्ताहीन का स्लोगन लेके बैठा हुआ है। ये सारे न्यूट्रल्स और ये करप्ट तरीन जजेस मेरे कायद से जेल में भी बैठे हुए डर रहे हैं, क्योंकि कौम उसके साथ है। कौम ने 8 फरवरी को पैगाम दे दिया था कि कायद आपका इशारा, सिर्फ आपका इशारा हर चीज पे भारी होगा, और वो कौम ने साबित कर दिया है। और मैं आखिर पे यही कहूंगा, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की, मेरी कौम की तमीर और तरक्की सिर्फ मेरे कायद के सुलूक के साथ है। लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।